वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास रे आमे डिस्कस करथिले ओएस्टर्स एक्सपेरिमेंट एंड बायोट-सावर्ट्स लॉ। आज देखिबा किछि एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। मने पके दोछि आउ थरे टिके। बायोट-सावर्ट लॉ गेव the magnitude and direction of magnetic field due to small element of a current carrying conductor। गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर रो स्मॉल एलिमेंट जो बायोट-सावर्ट लॉ देथिला मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो एटा गोटे स्मॉल एलिमेंट मु नोथिली गोटे करंट कैरिंग कंडक्टर रो एठे गोटे पॉइंट रहउतला p पॉइंट जार पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल सबटेंड करूतला एडवांसिंग करंट रो डायरेक्शन सहित एंगल करूतला थीटा। सो एठे हम बायोट-सावर्ट लॉ रे पाइथिले कोन dB is equal to mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square, ideal sin theta by r square. So this was the scalar form of Biot-Savart's law. In vector form हमें लिखुथिले that is equal to mu naught by 4 pi I dl cross r by r cube. So this was the vector form and this was the scalar form. Vector form रो हमें डायरेक्शन पाउथिले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी रो dl cross r कले the magnetic field intensity is perpendicular to the plane containing dl vector and r vector. Magnetic field intensity is perpendicular to the plane containing dl and r, that is perpendicular to this board and directed outwards. Perpendicular to this board and directed outwards. So this was the direction and this was the magnitude mu 0 by 4 pi ideal sin theta by r square due to a small element of a current carrying conductor. Biot-Savart's law is only valid for a small element. गोटे बड़ कंडक्टर पय करिया को हेले बायोट-सावर्ट लॉ को हम अप्लाई करी कि इंटीग्रेशन कले गोटे बड़ कंडक्टर पय पाइबा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आज देखिबा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर by applying Biot-Savart's law. Magnetic field due to a long straight current carrying conductor गोटाए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बाहर करिबा बाय अप्लाइंग बायोट-सावर्ट्स लॉ। गोटाए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मु नउची AB जो थिरे करंट फ्लो होची फ्रॉम A to B, a current I is flowing from A to B. P is the observation point. P is the observation point at which we will find the net magnetic field intensity due to this conductor AB. We will apply Biot-Savart's law. Let us take a small element from the conductor. Let XY is a small element of a current carrying conductor jahar center ta hochi O. The center of the element is O. Now the distance of the point P from the center of the element is let x. The angle made by the position vector of the observation point with the advancing current, with the direction of advancing current is let theta. Let us draw a perpendicular from P point to the conductor AB, PM. So this is the perpendicular PM. Let this length is R. Magnetic field intensity at point P will be calculated due to the conductor AB by applying Biot-Savart's law. एठी गोटे स्मॉल एलिमेंट मु नेली जार लेंथ होची dl xy रो आउ dl जो को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एठी मु बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करी कि लिखि परिबी dB is equal to mu 0 by 4 pi
आईडीएल साइन थीटा बाय एक्स स्क्वायर डिस्टेंस टाको एठी हमें x नै छंती सो म्यू 0 by 4 pi आईडीएल sin थीटा by x स्क्वायर नाउ नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर करिया को हेले मते इंटीग्रेशन करिया को पड़िबो dv dv रो इंटीग्रेशन कले नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कंडक्टर ab पई मु पाई परिबी बट इंटीग्रेशन करिया पई सुविधा होनी पिले देखो तीनटा वेरिएबल अछि dl theta and x there are three variables dl theta and x जदि तीनटा जांका वेरिएबल को मु गोटा वेरिएबल ले कन्वर्ट करूची ताहले मु आराम से इंटीग्रेशन करि परिबी तीनटा वेरिएबल अछि पिले dl theta and x सो इंटीग्रेशन को इजियर करिया कहले तीनटा जांका वेरिएबल को मु जदि कन्वर्ट कर देबी इनटू ए सिंगल वेरिएबल ताले मु आराम से इंटीग्रेशन करि परिबी देखो केमिति करिया तीनटा जांका वेरिएबल को गोटा सिंगल वेरिएबल let this angle be alpha in triangle OMP theta plus alpha equal to 90 theta plus alpha equal to 90 so theta equal to 90 minus alpha sin theta is equal to sin 90 minus alpha that is equal to cos alpha so गोटा वेरिएबल को मु कन्वर्ट कली थीटा टा को कन्वर्ट करि देली अल्फा को एबे x आउ dl दीटा जांको जदी मु कन्वर्ट करि देबी गोटिए वेरिएबल अल्फा को ताले सुविधा हो देखो इन सेम ट्रायंगल OMP cos alpha is equal to r by x so x टा केता थिला x is equal to r by cos alpha or that is equal to r sec alpha ए लेंथ रा पिले OM रो लेंथ रा होची l so in the triangle OMP tan alpha is equal to L by R. Tan alpha is equal to L by R. Now L is equal to R tan alpha. L is equal to R tan alpha. So dl टा केते हबो dl is equal to tan alpha रो डेरिवेटिव केते sec square alpha. So R sec square alpha d alpha so r sec square alpha d alpha now देखो तीनटा जांको वेरिएबल को मु गोटा वेरिएबल ले कन्वर्ट करि देली अल्फा रे sin थीटा टा को कर देली cos alpha x became r sec alpha dl is equal to r sec square alpha d alpha एबे वैल्यू पुट करिबा एठे सब वैल्यू पुट करिबा तीनटा जांको वेरिएबल रु तापर हम इंटीग्रेशन करिबा नाउ dv is equal to mu naught by 4 pi I dl जगह केते लिखबी r sec square alpha d alpha sin theta जगह केते लिखबी cos alpha divided by x square x is equal to r sec alpha so x square is equal to r square sec square alpha now that is equal to mu naught by 4 pi sec square alpha cancel out गोटा r कटि गला रहला केते I by r cos alpha d alpha now मैं इंटीग्रेशन करिबी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B is equal to integration of dv from 0 to b that is equal to integration of mu naught by 4 pi I by r cos alpha d alpha लिमिट देबी केते देखिबा सो टोटल कंडक्टर टा कवर करिया पई हेले
आमको केते केते एंगल दरकार केते एंगल रु केते एंगल देखिबा लेट दिस एंगल बी थीटा 2 एंड दिस एंगल बी थीटा 1 सो फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2 जदी मु लिमिट दउची ताले मो टोटल कंडक्टर टा कवर हो जाउची सो फ्रॉम लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 थीटा 1 टू थीटा 2 जदी मु एंगल रो दउची अल्फा को लिमिट तार थीटा 1 टू थीटा 2 ताले होल कंडक्टर टा मोर कवर हो जाउची सो नाउ दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई कांस्टेंट आई कांस्टेंट आर कांस्टेंट बाहर को आनली cos अल्फा डी अल्फा रो इंटीग्रेशन केते sin अल्फा सो cos अल्फा डी अल्फा रो इंटीग्रेशन sin अल्फा फ्रॉम लोअर लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 that is equal to mu naught by 4 pi I by r sin theta 2 minus sin of minus theta 1 theta 1 टा को पिले मु नेगेटिव नउची minus theta 1 काहे कि एटा को एंटी क्लॉकवाइज नै theta 2 को नै कि क्लॉकवाइज सो सेटा को पॉजिटिव रखिली जेहेतु theta 1 टा को मु एंटी क्लॉकवाइज नै ची ताको नेली नेगेटिव सो minus theta 1 नाउ माइनस माइनस हे गला कोन प्लस so that is equal to mu naught by 4 pi I by r sin theta 1 plus sin theta 2 mu naught by 4 pi I by r sin theta 1 plus sin theta 2 so this is the expression magnetic field intensity at any point due to a long straight current carrying conductor ओटा long straight finite conductor पई magnetic field intensity आथिला mu naught by 4 pi I by r sin theta 1 plus sin theta 2 so this is the expression for a finite conductor एबे किछि केसेस देखिबा if the conductor is infinite conductor ता जदी infinite हबो ताल केते आसीबो magnetic field intensity देखो पिले जदी इनफाइनाइट कंडक्टर ही जाए कंडक्टर ए टा एलोंगेट करिवो इनफाइनाइट की बी टा को भी एलोंगेट करिवो इनफाइनाइट की ताले थीटा 1 एंगल टा हे जिवो 90 थीटा 2 एंगल टा भी हे जिवो 90 सो एंगल दीटा हे जिवो केते 90 फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर थीटा 1 is equal to 90 degree theta 2 is equal to also 90 degree case 1 जदि गोटे इनफाइनाइट कंडक्टर आमे नबा ता पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी केते आसी थीटा 1 इक्वल टू 90 थीटा 2 भी 90 फार्मूला पुट करिवा b is equal to mu naught by 4 pi I by r sin theta 1 sin 90 plus sin 90 दीटा जांग 90 डिग्री that is equal to sin 90 ର value केते 1 so mu naught by 4 pi I by r into 2 so that is equal to mu naught I by 2 pi r so this is the expression for magnetic field intensity due to an infinite conductor जो magnetic field intensity आथिला केते mu 0 I by 2 pi r एबे देखिबा जदी ऑब्जर्वेशन पॉइंट ता गोटे इनफाइनाइट कंडक्टर रो गोटा एंड रे अछि इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट वन एंड ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ता इनफाइनाइट कंडक्टर रो गोटा एंड रे अछि माने एटा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ता एठे रहिला इनफाइनाइट कंडक्टर रो गोटा एंड रे आरो पटटा इनफाइनाइट जाय लंबीची एटा होची गोटा एंड तारे गोटा एंगल हबो थीटा 1 ता हबो 90 थीटा 2 टा हबो केते 0 एठी थीटा 1 टा हबो 0 थीटा 2 टा हबो 90 if the observation point is at one end of an infinite conductor
ऑब्जर्वेशन पॉइंट जदि इनफाइनाइट कंडक्टर रो गोटाए एंड रे रहिला ताहले थीटा 1 इज इक्वल टू 0 and theta 2 is equal to 90. Now put the values in the formula. B is equal to mu 0 by 4 pi I by r into sin 0 plus sin 90. So केते आथिला? This is 1 mu naught I by 4 pi r. दीटा formula पिला में पाइले. इनफाइनाइट कंडक्टर पई आसिला मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ जदी इनफाइनाइट कंडक्टर रो गोटाए एंड रे अछि ऑब्जर्वेशन पॉइंट ता पई आसिला म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर सो दीज आर द एक्सप्रेशंस फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर हम दिले देखिले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बायोट-सावर्ट लॉ एप्लीकेशन गोटाए एप्लीकेशन देखिले गोटाए इनफाइनाइट कंडक्टर जो भी देखिले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज एट वन एंड ऑफ एन इनफाइनाइट कंडक्टर आमे देखिले मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पई एक्सप्रेशन केते आसुची एबे देखिबा जदी गोटे सर्कुलर कंडक्टर अछि तार सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी केते आसुची अप्लाइंग बायोट-सावर्ट लॉ दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन magnetic field intensity at the center of a circular current loop गोटे सर्कुलर करंट लूप रो सेंटर रे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी केते आसुची बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करी के हमें बाहर करिबा सो लेट दिस इज ए सर्कुलर कंडक्टर of radius r the radius of the circular conductor is r and a current I is passing through it in clockwise direction बायोट-सावर्ट लॉ अप्लाई करिया कहले हमको आगे गोटे स्मॉल एलिमेंट नबा को पड़िबो बिकॉज़ इट इज वैलिड फॉर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर स्मॉल एलिमेंट पई नबा तापर इंटीग्रेशन करी कि होल कंडक्टर पई बाहर करिबा एठे गोटे स्मॉल एलिमेंट मु नउची xy जार लेंथ होची dl ना पोजीशन वेक्टर ता होची r सो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पई केते लिखिबा db is equal to mu naught by 4 pi I dl sin theta by r square एटी देख पिले dl ता गोटे टैंजेंट होची सर्कल को रेडियस सहित एंगल करिबो केते 90 सो हियर theta equal to 90 degree so db is equal to mu naught by 4 pi I dl by r square. Now to find the net magnetic field intensity we have to integrate dB within proper limits. So net magnetic field intensity B is equal to integration of dB from 0 to B that is equal to integration of mu naught by 4 pi I dl by r square. एबे एठी लिमिट ता केते नबा इट इज I कांस्टेंट r कांस्टेंट ओनली वेरिएबल dl ताको इंटीग्रेशन कले दिस इज द एलिमेंट ऑफ ए सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इंटीग्रेशन कले टोटल सर्कमफेरेंस मिलिबो सर्कल रो सर्कमफेरेंस केते 2 पाई r सो लिमिट फ्रॉम 0 to 2 पाई r नाउ दैट इज इक्वल टू mu naught by 4 pi constant outside the integration I r square all are constants outside the integration dl integration L from 0 to 2 pi r so that is equal to mu naught by 4 pi I by r square into 2 pi r that is equal to 2 pi cancel out wala mu 0 I by 2r mu naught I by 2r so this is the expression for magnetic field intensity at the center of a circular current loop
magnetic field intensity B is equal to mu naught I by 2r. This is the expression for magnetic field intensity at the center of a circular current loop. जदि गोटे आर्क रहिबो सर्कल रो आर्क ताले ता पई magnetic field intensity केते आसीबो for an arc of circle of a circle सर्कुलर कंडक्टर रो आर्क जदि रहिबो आर्क पई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी टा आर फ्रैक्शन हे जिवो म्यू 0I/2r रो किछि गोटा फ्रैक्शन रहिबो केते फ्रैक्शन रहिबो लेट द आर्क मेक्स एन एंगल थीटा at the center. This is an arc of a circle. It makes an angle theta at the center. So magnetic field intensity B will be theta by 360 into mu naught I by 2r. So mu naught I by 2r is for circle and it is for the fraction of which angle it made at the center. Center रे केतिकी angle करिछि सेही अनुसार तार गोटे fraction रहिबो arc of the circle by magnetic field intensity. So the magnetic field intensity due to an arc of a circle is theta by 360 into mu 0I by 2r. If the angle is given in degree, if the angle is given in radian, then theta by 2 pi into mu 0I by 2r. So for semicircle, magnetic field intensity will be half of what it is for the circular loop. Circular loop पाई सेंटर रे जेति की अछि सेमी सर्कल पाई तार आधा आइ जिवो केते हबो B is equal to mu naught I by 4r. So this much. आज पिले दीटा एप्लीकेशन हमें पढिले बायोट-सावर्ट लॉ रो फॉर ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर एंड फॉर ए सर्कुलर लूप एंड फॉर एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर लूप. ए एप्लीकेशन को यूज करी कि नेक्स्ट क्लास गुडा रे हमें क्वेश्चन सॉल्व करिवा देखिबा को कोन होजी. सो आज ये थी थाओ.